नियत अच्छी रखोगे ना तो सब कुछ आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। कुछ नहीं भी होगा ना तो आपने कभी किसी का गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत हो भी नहीं सकता। या उनसे जब मैं मिली ना कि यार इन्होंने मुझे बुलाया है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इस दिन देखा कि वाह ऐसे प्राइवेट पूल भी होता है। तो एक दिन मैं ये एक्चुअली ना एक दिन बैठकर लिस्ट बनाया कि सुरभि अमीर कैसे बनना है ना। कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा। वैसे भी तो सो ही रही है ना, तो डिफरेंट आ गया जी, आ गए पंजाबी आ गए ने। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਅੱਜ 31 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬੈਂਕਾਕ ਤੇ ਪਟਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਿਕੀ ਰਾਈਸ। ਔਰ ਸਟਿਕੀ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੈਂਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਰਾਈਸ ਵੀ ਥੋੜੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗੋ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਕੀ ਰਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਊ ਮਚ ਚਾਰਜ ਇਨ 100 baht mango rice. मैंगो राइस स्टिकी राइस ना 100 बाट पर प्लेट। ओके थैंक यू। तो एक 100 ਬਾਟ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਕੀ ਰਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੀਚ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਾਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ बीच आ जाएगा और उत्थे जाके सेंटर देखते हैं। ये सेंटर बताया हुआ है तो यही है जो बताया था सेंट्रल। तो हिल्टन होटल भी इत्थे ही है। हिल्टन नूं तां किसी दी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं हैगी। काफ़ी उच्ची मतलब कि 35 फ्लोर की बिल्डिंग है, 35 तो 36 फ्लोर की बिल्डिंग है। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਸਤੇ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਲਾ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਚ ਦੇ ਨੀਅਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੀਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਕ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੀ ਫੂਡ 20 ਬਾਟ ਥੋੜੇ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਚੀਪੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਚਿਕਨ ਆ ਦੇਖੋ ਕਰਾਊਡ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਚੇਅਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਚੇਅਰਾਂ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਬੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੱਲ ਮੋਡ ਹੋਏਗਾ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡੀਜੇ ਡੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਸ ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਚਿੱਲ ਮੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਵਾਈਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਦਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਬਾਟ 2 ਚੇਅਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, 100 150 ਬਾਟ, ਕੋਈ 150 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 100 ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਲ ਮੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਮੌਜਾ ਕਰੋ, बैठो। मार्केट देखो जी। एक ना आंटी बार बैठती थी वहाँ पे, जिसको बोलते हैं ना हैंडी, टोटली हैंडी, हाँ डिसेबल, यस। मैं उसको देखना, मैंने 10 रुपए दे देना हर बार, मतलब जब जाना 10 रुपए दे, मतलब मैं अपनी कोई ऐसा नहीं दिखा रहा, मैं एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसको ना देख के आता ना, मेरी वाइफ मेरे साथ जाती,
और मेरी एक और गलती थी वहाँ पे, मैं शिवलिंग पे जाता था, मैं दूध सीधा नहीं डालता, मैंने गर्मी में डालना, पानी डालना, फिर डालना, और जो पैकेट बचता था वहाँ छोड़ के आता। एक आध बार मैंने उसको देखा भी, उसका पैकेट का क्या हो रहा है, मैं बाद में बताऊंगा क्या मतलब उस चीज़ का, मैं बाद में आपको सुनाऊंगा उस चीज़ का। तो थोड़ा गलत भी लगा, थोड़ा फील भी हुआ, मैं कहा छट यार, तू अपना काम करता ना, छट परा, तेरा काम हो गया, तू चढ़ाता, तेरा काम खत्म हो गया, अब वो की हो रहा नहीं, मतलब 15 हफ्ते बाद या 10 हफ्ते बाद, 10 वीक्स एंड 15 वीक्स, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਗੜਵੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨਾ, ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੇ ਆ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਪੋਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਣਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਇਹ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮਾਨਵੀ ਹੋ ਗਈ 19 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 19 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਰੀਬ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ मिल गया, वही सेम चीज बोल दिया जो आपके मन में चल रहा था, जो मेरे मन में चल रहा था, वो बंदा मेरे सामने आके बैठ गया, और उस बंदे को मैं ना जानता हूँ, ना मैं मानता हूँ, ना मैंने कभी देखा। वो बंदा मेरे पास आया, मेरे को उसने एक स्पष्ट सी बात बोली, भाई पैसा वेस्ट कर रहा है, पैसा फेंकने जा रहा है, पैसा वहां लगा जहाँ किसी के काम आए, अगर तू कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कर, वो तेरी लाइफ है, अगर तू मतलब कुछ करना चाह रहा है ना, तो उसको कर जिसके काम आना चाहिए। ओके, पहला तो मैंने समझ नहीं लगी गल, मैं अपना काम किया, मैं यार मंदिर च बथेरे बंदे ज्ञान वंडने आते, इन्हें भी ज्ञान वंडता, मैं और रात सुता, फुल नाइट वो बंदा मेरे इत्थे बैठा रहा। उस तो बाद मैं अमरनाथ गया जितू, उस तो बाद मैं अमरनाथ गया, वो बंदा कहता तू चीज़ां देखनी है ना तो यात्रा करके आ, मैंने किसी यात्रा का नहीं अमरनाथ किया, उन्हें यात्रा कर, मतलब ट्रैवल कर रहा है जी जगह ते हिल, मतलब जिथे हिस्टोरिक की ना रिलीजन प्लेस, उत्थे जा, तेनू पता लगेगा कि की चीज़ां होंदियां और की करना चाहिए। मैं जी अमरनाथ चला गया, अब बंदा मेरे नाल गया, जो उत्थे मिला मैंने। अच्छा अमरनाथ से मिले आप दोनों? यस, 2017 ये बंदा वहाँ तब मिला मेरे को। एक और शॉकिंग है, इतों लेकर पेड़ तक ना शिवलिंग है, मैं तो वापस हो गया, मैं दर्शन भी नहीं कर पाया, शिवलिंग के दर्शन नहीं किए मैंने। 14 किलोमीटर या 22 किलोमीटर मैं चल के गया हूँ, सबसे खतरनाक वाला रास्ता लेके, क्यों जी तो उतरे गया मैं, ਅਸੀਂ गए पहलगाम वालों, शिवलिंग मेरे तो 2 किलोमीटर दूर है, पर मैं दर्शन नहीं कर पाया, मैं वापस आ गया। अच्छा, वापस आया, एक मानदी है कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, वापस आ गया। ये तो हो गया जी मेरी चीज, इनके बारे दस। 27 हूँ मैं, 2015 में मैंने घर छोड़कर मैं देहरादून शिफ्ट हो गई थी, 5 साल मैंने पढ़ाई किया, तब से मैं बाहर हूँ, तो मैं घर जाती हूँ, जैसे अभी 3 दिन पहले मैं घर पे ही थी दिल्ली में, और 1 मंथ के लिए मैं जाती हूँ। बहुत प्यारी फैमिली है मेरी, बहुत सब चीज़, पापा मम्मी सब लोग बैठकर हर चीज़ शेयर करते हैं, जैसे न्यू ईयर के लिए सबका वीडियो कॉल आया, अच्छे से बात कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है। तो मैं अपने सिर्फ छोटे भाई को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं अपने, सब कुछ वही है मेरे लिए, ठीक है। तो वो सिर्फ ये बोलता है कि अपनी नीयत अच्छी रखोगे ना तो सब कुछ आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, कुछ नहीं भी होगा ना तो आपने कभी किसी का गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत हो भी नहीं सकता, कि आप इतने कॉन्फिडेंस में बोल सकते हो। सिर्फ नीयत अच्छी रखनी है, सब कुछ एक तरफ और नीयत एक तरफ। तो मैं कभी भी, अगर मैं पिछला भी कुछ देखूँ ना, तो मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, हमेशा अपनी नीयत हमेशा एकदम साफ रखी है, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ, तो मैं एक छोटा सा मेरी लाइफ में लाइफ चेंजिंग था, मुझे ना लाइफ में कभी जॉब नहीं करनी थी, तो मैंने बैचलर से ही सोच लिया था और लिख दिया था ये वाला, जैसे कहीं पढ़ा होगा ना कि टेलर स्विफ्ट ने पहले लिख दिया था कि जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी ना तो ये करूंगी। तो ये मैंने अपने बैचलर्स में कभी अपनी डायरी में लिख दिया था कि 3 साल तक मैं जॉब करूंगी और 3 साल के बाद मैं खुले हाथों से जॉब छोड़ दूंगी, चाहे मेरा कितना भी पैकेज होगा। लिख दी बच्चे ने, एक बात ऐसी लिख दी। उसके बाद जब मैं बैंगलोर में जॉब करी थी, बहुत अच्छे पैकेज पे थी मैं, तो 3 साल जब कंप्लीट होने वाले थे तो 3 महीने का रेजिग्नेशन था मेरा, एग्जैक्ट वही डेट पर मैंने 3 साल जॉब करके और 3 महीने पहले वो रेजिग्नेशन देकर सही 3 साल में मैंने जॉब छोड़ दी।
उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कैसे सिद्धि विनायक के दर्शन कर रही थी, जबकि मैं तो ऐसे थी कि ब्रश करके खा लेने वाला सीन था मेरा। कभी किसी ने घर में किसी ने सिखाया नहीं कि करना है या नहीं करना है, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, उसके बाद मैं अपने छोटे भाई के साथ मुंबई में दर्शन कर रही थी सिद्धि विनायक के। तो मैंने उनसे जब मैं मिली ना कि यार इन्होंने मुझे बुलाया है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि सिद्धि विनायक विनायक जब भी तुम नया शुरुआत करते हो ना तो हमेशा उनको याद करते हो, सिद्धि विनायक को। ठीक है, तो सिद्धि विनायक मेरी लाइफ में ऐसे है, तो मैं उनका उनका सिद्धि विनायक को अपने घर ले आई कि जिस दिन मतलब कुछ जैसे मेरा यही था कि जिस दिन मैं अपनी पहली मर्सिडीज लूंगी ना कैश में, उस दिन मैं आपको उसमें विराजमान करूंगी। तो जितना वो इंतजार कर रहे हैं मतलब जितना मैं इंतजार कर रही हूँ उतना वो इंतजार कर रहे हैं मेरी मर्सिडीज में बैठने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं लेकर आई थी, मैंने जॉब छोड़ी थी मेरा 1 अक्टूबर 2023 में। उसी दिन एग्जैक्ट लास्ट डे पर संडे था और मैं दर्शन कर रही थी मुंबई में छोटे के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कभी शायद देखा मैं ना कुछ भी होगा तो मैं अमीरी जाके जरूर टेस्ट करूंगी। तो जैसे ताज होटल में मैंने मुंबई में जाकर स्विमिंग देखा कि वाह ऐसे प्राइवेट पूल भी होता है, तो एक दिन मैं ये एक्सेस करूंगी। तो आकर कल्ट प्ले की मैंने मेंबरशिप ली। कल्ट प्ले, अभी मैं बहुत अच्छी स्विमिंग करना जानती हूँ, अभी मैं बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हूँ। तो ऐसे ये सारी चीजें मेरी लाइफ में आने लग गई। तो फिर उसके बाद मैंने कब जल्दी उठना शुरू कर दिया, कब मैंने 4 AM पर मैं शिफ्ट हो गई। तो मैंने ना एक दिन बैठकर लिस्ट बनाया कि सुरभि अमीर कैसे बनना है। मैंने लिस्ट बनाया, उसके बाद लिखा कि सुबह जल्दी उठना है। क्या तू कर पाएगी? लेकिन तू तो 10 बजे उठती है, खुद से अपनी अपनी खुद से बातचीत कर रही हो। तो फिर ये कहा कि अगर ये नहीं कर सकती तो तू नहीं हो सकती, हट। मैं जस्ट एक वो बातें बता रही हूँ, शायद मैंने ये वाली इतनी डीप कॉन्वर्सेशन कभी किसी के साथ नहीं करी है। उसके बाद 16 अक्टूबर को जाकर मैंने मेंबरशिप लिया और स्टार्ट कर दिया। वो साइकिल थी मेरे पास, 20 किलोमीटर से आना 20 किलोमीटर आना, सुबह 3 बजे उठना। और ये कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, ब्रह्मा जी वो साथ घूमते हैं। मैंने कहा अगर किसी ने बोला है तो करके देखते हैं ना, कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा। वैसे भी तो सो ही रही है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी है। और सिर्फ दिमाग में यही है कि अमीर बनना है, दिमाग में ये लेकर और नियत साफ रखनी है सिर्फ, वो बहुत उससे। फिर मैं अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में गई। कुछ तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो पहले मैं मुंबई की टिकट लेती हूँ, मैं सिद्धि विनायक के दर्शन करते हुए जाती हूँ। तो महाकाल का मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मध्य प्रदेश में उज्जैन जैसी जगह, कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ शायद वर्ड्स ऑफ घर पर। क्योंकि मेरे घर वाले गए हुए होंगे, मेरी दादी ने सब कुछ ये 12 ज्योतिर्लिंग ये 4 धाम किए हुए, लेकिन उन्होंने हमारे ब्लड में नहीं डाला ये वाली चीज। ठीक है, तो उसके बाद दर्शन जब मैं सिद्धि विनायक के दर्शन करके जबलपुर में एंगेजमेंट थी, तो मैंने कहा उज्जैन सुनने में सेक्सी लग रहा है, तो चलो उज्जैन की बस पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं। मैं पहुंची और ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया कि मैं उनको देख रही हूँ और मुझे लगा, मुझे जस्ट एक माइंड में स्ट्राइक हुआ, आई एम द चूजन वन, कि मुझे उसने बुलाया है, कि कुछ तो मेरे अंदर बात है कि वाटर बॉटल, if anyone gives a वाटर वाटर we need water. Thank you. थैंक यू। ठीक है, तो उनको मैं देख रही हूँ और मैंने वहीं पे खड़े होकर रो दिया कि फक ये क्या हो गया और ये मैंने क्या फील कर लिया, और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। तो वो दिन है और आज का दिन है कि मैं बहुत श्योर में बोल सकती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा सब कुछ वो देख रहा है। जब मैंने एक स्टोरी सुनाया था ना आईफोन वाला, कि जब तुम अपने बड़े को बोल देते हो कि जो भी दीदी आपको अच्छा लगेगा ना वो ले आना, तो आप कभी 19 काम नहीं करोगे। अब जो भी सबसे लेटेस्ट होगा ना 256 GB 13 Pro Max जो भी उस टाइम पर आया होगा, और आई वॉच के साथ मैंने भेजा था कि मेरे भाई ने बोला दीदी आप देख लेना। अब दीदी देखेगी तो दीदी कैसे 19 काम कर देगी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने भाई के साथ इतना प्लस 21 काम करके चल रही हूँ, तो वो तो सब कुछ देने वाला तो वही है। हमें लगता है कि हमने किया, नहीं, देने वाला वो है। हमें लगता है कि हमने किसी को दिया, नहीं, वो हमें इस लायक बना रहा है कि हम किसी को भी दे सके। या फिर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें लगता है कि यार 10,000 की टिकट हो गई, अरे देने वाला वो है, वही सब कुछ दे रहा है, तू बन तो बना। ठीक है, फिर महाकाल के दर्शन करने के बाद जब मैंने वहाँ पे बैठकर रो रही, मैंने कहा यार ये क्या फील कर लिया, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सिद्धि विनायक, और तब तक मैं सिद्धि विनायक की पूजा करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं मॉर्निंग एक अर्ली राइजर में बन चुकी थी तब तक। तो ठीक है, फिर मुझे ऐसा लगा अच्छा बेटे ने पहले बुलाया फिर पापा के पास। सिद्धि विनायक बेटे है ना, गणपति बेटे है ना, कि अच्छा गणपति जो है वो बिगिनिंग के देवता है, सारे विघ्न हरता तो वही है ना, कुछ भी विघ्न आएगा तो हरेगा सबसे पहले मेरा सिद्धि विनायक। सबसे पहले मेरा सिद्धि विनायक वो खड़े हो जाएंगे आकर महाकाल के दर्शन, ओमकारेश्वर के दर्शन। अब फिर पता क्या हुआ, जब भी तुम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाओगे ना, मेरा एक्सपीरियंस है, आपको ना एनर्जीज रोकेंगी। आप कितना भी अपना सब टिकट वगैरह कर लो,
सब कुछ कर लो, लोग जाते जाते रह जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग जाएंगे और वहां से ना महाकाल या वो मना कर देंगे नहीं तू लायक नहीं है मेरे दर्शन के, और वहीं से तो तुम्हें उल्टा कर देंगे। ये लोग केदारनाथ जाते हैं और दर्शन करके नहीं आते क्योंकि तुम्हें अभी थोड़े अच्छे कर्म तुम्हारे बाकी हैं। तो मैं रामेश्वरम का, मैं ना इंस्टाग्राम पर एक पोल डालती हूँ कि बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ, तो लोग ना ऐसे चूज करते हैं। मेरा खुद का भी रामेश्वरम पे टिकता और मैं कहाँ पहुंच गई, एलेपी पहुंच गई मैं, केरला में। तो जब मैं जाते जाते मेरा खुद का भी टिक रामेश्वरम पे था, मैंने कहा फक ये मैंने क्या किया, मैंने एलेपी की टिकट कैसे हो गई। फिर मुझे लगा कि सर भी कुछ एनर्जीज हैं जो तुझे रोक रही हैं। फिर मैं अपनी मम्मा के साथ गई। फिर मैंने रामेश्वरम के दर्शन नहीं किए, फिर मैं मदुरई गई। पहले मदुरई 51 शक्तिपीठ में से एक है और सबसे स्ट्रॉन्ग टेम्पल जो है शक्तिपीठों में से वो मदुरई है। फिर मैंने मदुरई के दर्शन किए। फिर मैं रामेश्वरम गई अपनी मम्मी के साथ, मैंने कहा अच्छा मम्मी के साथ बुला रहे थे आप मेरे को, ठीक है। फिर मम्मी के साथ दर्शन किए। फिर कन्याकुमारी एंड देन त्रिवेंद्रम जो पद्मावत वो टेम्पल है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार मुझे इतनी प्यारी एनर्जीज मिल रही हैं तो क्यों ना कंप्लीट करते ना ज्योतिर्लिंग। दिमाग में भी नहीं था कब कहाँ से क्या आ गया। मल्लिकार्जुन तेलंगाना पहुंच गई, तेलंगाना में किया। फिर करते करते महाराष्ट्र में अपना भीमा शंकर का वो कंप्लीट किया। फिर जब मैं मुंबई गई ना, मैंने मुंबई में गई, मैं अप्रैल में कहीं भी जाऊंगी, मुंबई पहले जाऊंगी, सिद्धिविनायक के दर्शन करने के बाद कहीं भी फ्लाइट लूंगी। अब मैं मुंबई में 3 दिन हो गए, मैंने कहा सुरभि कोई एनर्जी रोक रही है तो क्यों नहीं जा रही भीमा शंकर, तुझे भीमा शंकर निकल। 2 दिन मैंने पुणे में बिता दिए, कोई एनर्जीज मुझे खींच रही है और वो मुझे फील हो रहा है। अब मैं थक भी गई हूँ। फिर मुझे लग रहा है सुरभि चलना बैंगलोर चलते हैं यार, बैंगलोर चलते हैं। और वहाँ पे ना कुछ ऐसे एक बंदा ना कुछ मतलब स्कैम करने की कोशिश हो रहा था, ठीक है। भीमा शंकर कंप्लीट किया। फिर 2 ज्योतिर्लिंग और करने थे, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है। फिर त्रिमकेश्वर जाते जाते मैं बहुत टायर्ड हो गई थी क्योंकि ऑलरेडी 7-8 दिन हो गए थे और सही ऐसा लगता है बंदे को कि प्लीज फ्लाइट ले और वापस घर चल प्लीज। सुरभि मैंने अपने आप को सारी जितनी भी मेरे अंदर जो भी लाइफ थी मैंने एक जगह कलेक्ट करी। मैंने कहा नहीं सुरभि चाहे कितनी भी एनर्जी रोक ले, कुछ भी आकर बोल दे, लेकिन तुझे कंप्लीट करना है। त्रिमकेश्वर किया, गृनेश्वर किया। गृनेश्वर में जब जाकर मैंने संभाजी नगर देखा, उसका नाम पहले औरंगाबाद था। फिर जब मैंने संभाजी नगर देखा कि 50 के नोट पर, लोगों को 50 के नोट तो बड़ा प्यारा होता है, कभी उसको पलट के देखा कि एलोरा केव्स है, उसको जाकर देखो तो सही। हमारा इतिहास मिटाने के लिए कितनी कोशिश की गई लेकिन हमारा इतिहास फिर भी नहीं मिटा। जब आप एलोरा केव्स देखोगे ना अपनी आंखों से तो आप कहोगे ये इंसानों का काम नहीं है। ये 1700 ईस्वी में जो यूनेस्को ने उसे वो अवार्ड वगैरह दिया है, ये किसने कैसे मिटाया होगा और किस तरीके से औरंगजेब ने इसको मिटाने की कितनी कोशिश करी, बट ये आज भी सब कुछ वैसा का वैसा है। वो जरूर देखना चाहिए। फिर मैंने देखा यार हमारे पेरेंट्स ने क्यों नहीं दिखाया हमें कि हमारा इतिहास तो ये है। तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि तुम इस घर में पैदा हुए हो, ठीक है। उसके बाद मैं देखकर वापस आई। फिर ये करने के बाद मैं काशी विश्वनाथ की मैंने वंदे भारत करी, ठीक है। उसी दिन मेरी बड़े भाई की बेटी हो गई, ठीक है। तो मेरी सुबह की टिकट थी और रात को भाभी की बेटी हो गई। अब टिकट कैंसिल हो गई। मैंने अगले हफ्ते फिर करी। मैंने कहा तू कितनी बार कैंसिल कराएगा, देने वाला भी तू, पैसे देने वाला भी तू, सब कुछ करने वाला भी तू कैंसिल कराता जा, मैं करते जाऊंगी टिकट। फिर मैंने अगले हफ्ते गई, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। और वीआईपी दर्शन, मुझे जहां भी जाऊंगी ना, मैं कैसे भी, मुझे हमेशा वीआईपी दर्शन मिलेगा। तो वहाँ पे पंडित जी मुझसे पूछ रहे कि कहाँ जाना है। मैंने कहा कि मुझे तो वो जाना है। उन्होंने मेरे को पूरा वीआईपी की लाइन में लगाया। मंडे का दिन था। अगर मैं वीआईपी दर्शन अगर वो मुझे नहीं मिलते तो कम से कम मेरे 8 घंटे में भी दर्शन नहीं होने थे, 8 से 10 घंटे में भी। बहुत ज्ञान वापी का जल वगैरह पिया। उसके बाद पूरा काशी विश्वनाथ अच्छे से घूमा। तो हर जगह कहीं भी जाओगे तुम्हें एनर्जीज रोकेंगी। तुम्हें कहते हैं ना कि जैसे कि तुम्हें वो इनवाइट करता तब तुम जा सकते हो, नहीं, भक्त के वश में है भगवान। तुम जिद पकड़ लो, वो खुद आके बोलेगा चल यार तू चल मेरे साथ। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि वो बुलाएगा तभी तुम जा सकते हो, नहीं, जिद पकड़नी पड़ेगी। भक्त अगर बैठ जाएगा ना तो उसको तुम्हें मनाने के लिए भगवान खुद आएगा तुम्हें मनाने के लिए। तो यही है मेरी स्टोरी। तो हर जगह एनर्जीज तुम्हें रोकेंगे। अगर ये लाइन मैंने उनको बोली है ना कि आप हिंदू हो और आपको ज्योतिर्लिंग करवाना चाहिए, वो मैंने नहीं बोली, उन्होंने महाकाल ने बुलाया होगा। इस वजह से शायद मेरे थ्रू उन्होंने बुलवाया होगा। उसके बाद जो मुझे लोग मिलते रह गए, उन कितने लोगों ने ज्योतिर्लिंग अपने कंप्लीट कर लिए हैं मेरे से भी पहले। और उन लोगों का जब टेक्स्ट आता है ना मुझे कि सुरभि तेरी वजह से ना आज मैं सोमनाथ में हूँ, कि तूने मुझे बोला और आज मुझे कि जो भी उनको फील होता होगा, तो जो भी मुझे लगेगा ना मैं उसको बोलूंगी जरूर। और मैं ऐसे ही बोलूंगी कि अगर आप हिंदू हो तो आपको करना चाहिए, अपने बच्चों में ये डालना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स नहीं डाल पाए। अभी मैं अकेले जा रही हूँ ज्योतिर्लिंग करने के लिए। जब मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर आएगा, प्रॉपर रुद्राभिषेक करा कराऊंगी। मैं हर जगह जाकर मैं ना जिद पकड़ लेती हूँ। मैंने कहा तू मेरा पेरेंट है, तू ही मेरा माँ बाप है,
तो मुझे जो चाहिए ना, मैं तेरे से चौड़ में बोलूंगी कि भाई मुझे ये चाहिए और मुझे नहीं पता, तू करके दे। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगी। तू मुझे जल्दी उठने के लिए बोलेगा, तू ये बोलेगा वो बोलेगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ये चाहिए मेरी प्लेट में। और मेरे लिए वर्क कर रहा है पूरा 100% मेरे लिए वर्क कर रहा है कि मैंने शायद अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट भी मैं लूँ तो शायद 40-45 मैंने डोमेस्टिक फ्लाइट ली होंगी। एक महीने में मैंने शायद 5-5 फ्लाइटें ली होंगी। जो अच्छे से अच्छा कोई अर्न भी कर रहा होगा ना, वो भी नहीं शायद कर सकता, बट मैं नहीं कर रही हूँ, वही सब कुछ करा रहा है। तो यही है मेरी स्टोरी। तो बस ये था। ना इसलिए ये बोल रही है। तो आपने हमारी कन्वर्सेशन सुनी, आपको मिलेगी ये भाई 10 रुपये। हमारा ये छोटा पोकेमोन मेरा मिला है नहीं, हमें। पॉकीमोन। मेरा एक क्वेश्चन था आपके साथ। जैसे आपने अभी ट्रैवल अपना स्टार्ट किया, इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट किया, तो आप जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप ट्रैवल क्यों करना चाहिए, हमें ना 2-4 शब्दों में क्लियर की क्यों करना चाहिए, इसके हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं? जैसे लोग पहले गोल रखते थे अपनी जनरेशन्स के लिए, Okay. ऐसे ही आज के टाइम पर ना एक और पॉइंट और ऐड हो गया है। जितना ज़्यादा तुम ट्रैवल करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा माइंड और ज़्यादा खुलेगा। तुम वो अपनी जनरेशन्स में डाल सकते हो। पहले तो तुम खुद पे इम्प्लीमेंट करोगे, अच्छा ये वहाँ पर हो रहा है, तो क्यों नहीं हम जाके अपनी फैमिली को ये चीज़ गाइड करेंगे, तो वो चीज़ हमारे ब्लड में आने लग जाएगा। इसलिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम खुद पे काम कर रहे हो, खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और कभी भी ना, जब भी तुम ट्रैवल करो ना, कभी भी ये मत कहना कि तुमने ये पैसे वेस्ट किए, तुमने यूटिलाइज किए खुद पर, तुमने इन्वेस्टमेंट करी है खुद पर। तो जो भी, अगर तुम्हारे पास थोड़े से भी पैसे होते हैं ना, तो ट्रैवलिंग के लिए निकल जाओ बस। तो ये थे हमारे साथ सुरभि, तो निक नेम फॉर पॉकी नो नॉट सुरभि, आवर लिटिल पोकेमोन। पॉकीमोन। तो बने रहेंगे हमारे साथ Yes. नेक्स्ट व्लॉग में सुरभि। तो थैंक यू वेरी मच Yeah, फॉर thank you.